Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope your studies are going well and you all have enjoyed your holidays, your Dashera break, and now again we are back to our online and offline classes. Children, we are doing chapter number 6, Magic Paintbrush. In this chapter I was giving you answer of the question answers हम कर रहे थे exercise का, and we have completed 3 questions in the previous video. So in today's video I'll be continuing with the question answers and the other exercise. Let's start with the question answers, and question number 3 till question number 3 we had done. So we'll start from question number 4. Let me write the exercise. Answer these questions. Okay, question number is 3. Question number 4. What did the king want Jack to paint for him? What did the king want Jack to paint for him? इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि जो राजा जो था वो क्या चाहता था कि जैक उसके लिए क्या पेंट करे. What did the king want Jack to paint for him? मतलब राजा जैक से क्या पेंट करवाना चाहता था, क्या चाहता था कि जैक उसके लिए क्या पेंट करे. तो आंसर क्या होगा? आंसर हम लिखेंगे द किंग wanted Jack to paint a sack of gold coins for him. राजा चाहते थे कि जैक उनके लिए एक बोरा भर के गोल्ड कॉइन्स पेंट करे. A sack of gold coins. ठीक है. सैक का मतलब मैंने आपको बताया था, जो बोरी होती है उसको बोलते हैं सैक. क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगी. जैसे मैंने ये लिखा है कि द किंग वांटेड जैक टू पेंट अ सैक ऑफ गोल्ड कॉइन फॉर हिम. दिस इज आंसरिंग इन कंप्लीट सेंटेंस. व्हाट आई हैव सीन दैट व्हेन देयर इज एनी टेस्ट और इवैल्यूएशन, you people don't give answer in complete sentence. Like question was, where did King Bruce hide? So in cave. Most of the children have written in cave, but that is not the correct way of answering. You have to write in complete sentence. King Bruce hid himself in a cave. पूरा sentence में आंसर देना होता है. सिर्फ in cave लिखोगे, that will not be considered as complete answer. So answer in complete sentence. Try to answer in complete sentence. Question number 5. What did Jack paint to escape? What did Jack paint to escape? जैक ने बच निकलने के लिए, भाग जाने के लिए क्या पेंट किया? तो आप लिखेंगे जैक पेंटेड a key, okay, for the lock and a horse. आप सिर्फ देखिए, इसको दो तरह से लिख सकते हैं. जैक पेंटेड अ की एंड अ हॉर्स टू एस्केप. ये शॉर्ट में हो गया. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैक पेंटेड अ की टू ओपन द लॉक एंड अ हॉर्स टू राइड अवे ऑन and a horse he could ride away. इस तरह से, या फिर ये भी लिख सकते हैं जैक पेंटेड अ की एंड अ हॉर्स टू एस्केप. जैक पेंटेड अ की टू ओपन द लॉक एंड अ हॉर्स टू run away from there. This is the short one, and that one is the
long. So Jack painted a key and a horse to escape. This is also complete answer. तो ये हो गया आपके question answers. We'll move on to the next exercise. What is the next exercise? Next exercise is you have to put the sentence in order by writing the correct number. कुछ sentences दिए हुए हैं, वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है. जिस तरह से स्टोरी मूव कर रही है, पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है ना किसी भी स्टोरी का, तो ये प्रॉपर सीक्वेंस में सेंटेंसेस नहीं है. आपको क्या करना है, उसकी प्रॉपर सीक्वेंसिंग करनी है. कैसे करनी है? बाय राइटिंग द नंबर्स इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंसेस. जो सेंटेंसेस लिखे हैं उसके आगे आपको नंबरिंग करनी है कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ. तो इसके लिए पहले क्या करना होगा, पहले हम चलिए, तो इसके लिए पहले सेंटेंसेस को मुझे लिखना होगा. तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं और उसके बाद फिर मैं सेंटेंसेस को लिखूँगी. तो लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन है, put the sentences in order by writing the correct number. Put the sentences in order by writing the writing the correct number. This is the question. Then some sentences are written that I will be writing. मैं वो उसको लिख देती हूँ. पहले मैं नंबरिंग नहीं कर रही क्योंकि नंबरिंग ही तो हमें करनी है, एक्सरसाइज में तो हमें नंबरिंग ही करनी है. तो क्या करना है, यहाँ पर ऐसे पहले कुछ सर्कल्स बने हैं एंड देन सेंटेंसेस आर रिटन. सो आई विल ऑल्सो मेक द सर्कल्स एंड देन आई विल राइट द सेंटेंसेस. ही पेंटेड a key and a horse. Then we have the king put Jack into the prison. Then we have an old man gave him a paint brush. Next is Jack was a small boy. Jack was a small boy who loved to draw. Next sentence is the king asked Jack. The king asked Jack to paint a sack of gold coin. A sack of gold coins. Then next is he painted a bullock for a poor farmer. He painted a bullock for a poor farmer. Then next is the king's soldiers chased Jack. The king's soldiers chased Jack. Next is Jack painted a hole. And the soldier fell into it. And the soldiers fell into it.
सो दीज आर द सेंटेंसेस दैट आर गिवन इन द चैप्टर। आपके बुक में ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द नंबरिंग। सबसे पहले क्या हुआ, कि सबसे पहले तो पेंट नहीं किया होगा उसने हॉर्स, है ना, ही पेंटेड अ की एंड अ हॉर्स, ही पेंटेड अ की एंड अ हॉर्स। तो ये काम उसने सबसे पहले तो किया नहीं होगा। सबसे पहले क्या हुआ स्टोरी में सबसे पहले क्या था कि एक लड़का था जिसको पेंटिंग करना बहुत पसंद था। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिस वन, जैक वॉज अ स्मॉल बॉय हु लव्ड टू ड्रॉ। स्टोरी में सबसे पहले क्या पता चला हमें कि जैक एक लड़का था जिसे ड्राइंग करना अच्छा लगता था। नेक्स्ट क्या हुआ होगा, आप सारे सेंटेंसेस को पहले देखिए। द किंग पुट जैक इनटू द प्रिजन, राजा ने उसके जेल में बंद कर दिया, ऐसा तो नहीं था स्टोरी में, है ना। नेक्स्ट क्या हुआ होगा, एन ओल्ड मैन गेव हिम अ पेंट ब्रश। यस, जैक एक लड़का था जिसे ड्राइंग करना अच्छा लगता था। फिर हमने स्टोरी में जाना था कि एक ओल्ड मैन थे, एक बूढ़े आदमी थे जिन्होंने जैक को पेंट ब्रश दिया था, है ना। तो ये 2 हो गया। नेक्स्ट हमें स्टोरी में क्या पता चला था, द किंग आस्क्ड जैक टू पेंट अ सैक ऑफ गोल्ड क्वाइंस। जी नहीं, ये हमें नहीं पता चला था। हमें क्या पता चला था स्टोरी में, ही पेंटेड अ बुलक फॉर अ पुअर फार्मर। स्टोरी में हमें पता चला था कि जब उसको पेंट ब्रश मिला उसके बाद जैक ने एक पुअर फार्मर के लिए बुलक पेंट किया। तो हमारा ये हो गया नंबर 3 पर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद किंग की बारी आई। द किंग आस्क्ड जैक टू पेंट अ सैक ऑफ गोल्ड कॉइन। ये बात हमें पता चली स्टोरी में। जब जैक ने मना कर दिया पेंट करने से तो राजा ने क्या किया था, द किंग पुट जैक इनटू द प्रिजन। तो 5th नंबर पे हो गया, द किंग पुट जैक इनटू द प्रिजन। नेक्स्ट फिर क्या हुआ, जब जेल में ही बंद हो गया तो उसने क्या किया, ही पेंटेड अ की एंड अ हॉर्स। उसने एक की पेंट किया और फिर एक हॉर्स भी पेंट किया। नेक्स्ट क्या हुआ फिर, द किंग सोल्जर चेस जैक। उसके बाद राजा के सिपाहियों ने राजा का पीछा किया जब वो जेल से भागा। तो तब जैक ने क्या किया, जैक पेंटेड अ होल एंड द सोल्जर्स फेल इनटू इट। फाइनली उसने क्या किया, उसने एक होल पेंट किया और सारे सोल्जर्स उस होल में गिर गए, है ना। ऐसे ही हुआ था ना स्टोरी में। अब देखिए पूरी स्टोरी हमने नंबरिंग कर दी। अब आप जरा सेंटेंसेस पढ़ के देखेंगे तो आपको मीनिंग समझ में आते जाएगा। पहला क्या है, जैक वॉज अ स्मॉल बॉय हु लव टू ड्रॉ। जैक एक छोटा बच्चा था जिसे ड्राइंग करना अच्छा लगता था। एन ओल्ड मैन गेव हिम अ पेंट ब्रश। एक ओल्ड मैन ने उसे एक पेंट ब्रश गिफ्ट किया। ही पेंटेड अ बुलक फॉर अ पुअर फार्मर। उसने पुअर फार्मर के लिए एक बुलक पेंट किया। द किंग आस्क्ड जैक टू पेंट अ सैक ऑफ गोल्ड कॉइन। जब राजा को इसके बारे में पता चला तो राजा ने जैक से कहा कि मेरे लिए गोल्ड कॉइन पेंट करो, अ सैक ऑफ गोल्ड कॉइन। ओके, फिर क्या हुआ, जैक ने मना कर दिया तो किंग ने क्या किया, द किंग पुट जैक इनटू द प्रिजन। राजा ने जैक को जेल में बंद कर दिया। फिर क्या हुआ होगा, जेल में बंद कर दिया तो वहाँ से उसने भागने के लिए क्या किया, ही पेंटेड अ की एंड अ हॉर्स। उसने एक की पेंट किया और एक हॉर्स पेंट किया ताकि वहाँ से वो भाग सके। जब वो वहाँ से भागा तो क्या हुआ, द किंग सोल्जर्स चेस्ड जैक। राजा के सिपाहियों ने जैक का पीछा किया। फिर क्या हुआ, तो जैक ने अपने उन सिपाहियों को मजा चखाने के लिए क्या किया, ही पेंटेड अ होल एंड द सोल्जर्स फेल इनटू इट। उसने एक होल पेंट किया और सोल्जर्स उसी में गिर गए। तो ये हमारी प्रॉपर सीक्वेंसिंग हो गई ना स्टोरी की। इसी तरह से नंबरिंग हमें करना है बुक में, ठीक है। आपको बुक में भी इसी तरह से नंबरिंग करनी है स्टोरी की। दिस इज़ ऑल, ठीक। चलिए अब इसमें अगर आपने नोट कर लिया है नंबरिंग अगर, तो मैं इसको फिर इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यू कैन यूज़ द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो। नाउ कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं नीचे, फिल इन द ब्लैंक्स है। इनफैक्ट वो आपको क्या करना है, हेल्प बॉक्स में भी वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स की हेल्प से आपको क्या करना है, इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनको आपको फिल करना है। तो मैं पहले ओरली आपके साथ इसे डिस्कस करती हूँ। ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। आई विल
टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब मैं इसको ओरली आपको थोड़ा सा हेल्प करती हूँ, कोशिश कीजिए कि आप इसे खुद से करते हैं, ठीक। वर्ड्स आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ। वो जो हेल्प बॉक्स में वर्ड्स हैं वो है पेंट ब्रश, प्रिजन, बुलक, फार्मर एंड सोल्जर्स, ठीक है। सेंटेंसेस क्या है? अ डैश ग्रोज क्रॉप फॉर अस इन द फील्ड। कौन हमारे लिए फील्ड में क्रॉप ग्रो करता है? पेंट ब्रश बिल्कुल नहीं, प्रिजन नहीं, बुलक नहीं, फार्मर यस। तो इस तरह से आपको करना है। अ फार्मर ग्रोज क्रॉप फॉर अस इन द फील्ड। आई होप यू कैन डू इट योरसेल्फ। ट्राई कीजिए, अदरवाइज़ मैं तो हूँ ही बताने के लिए, मैं डेफिनेटली बताऊँगी, लेकिन ये आप कोशिश कीजिए खुद से करने का। नेक्स्ट वीडियो में इसे मैं रिटर्न में करा दूँगी, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ऑनलाइन क्लास में आप मुझे बताइएगा। नंबर 2 है ऑल द थीव्स वर सेंट टू डैश। थीव्स को कहाँ भेजा जाता है? पेंट ब्रश में नहीं, प्रिजन में यस, प्रिजन मतलब जेल, तो ये हो जाएगा प्रिजन। नेक्स्ट है इट टुक अस 3 days बाय डैश कार्ट टू रीच दिल्ली। कार्ट कौन सा कार्ट हो सकता है? पेंट ब्रश कार्ट होता नहीं है, प्रिजन कार्ट होता नहीं है, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी तो होती है ना, तो बुलक कार्ट। नंबर 4 है एन ऑर्डिनरी डैश कैन क्रिएट ब्यूटीफुल डिज़ाइंस यूजिंग पेंट। अब ऑर्डिनरी क्या? ऑर्डिनरी बुलक हमारा यूज़ हो चुका है, प्रिजन यूज़ हो चुका है, फार्मर यूज़ हो चुका है, तो ऑर्डिनरी सोल्जर तो नहीं होगा। ऑर्डिनरी पेंट ब्रश कैन क्रिएट ब्यूटीफुल डिज़ाइंस। देन वी हैव द किंग्स ब्लैंक वर सेंट टू एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। राजा के कौन? राजा के सिपाही, राजा के सोल्जर्स। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा द किंग्स सोल्जर्स वर सेंट इनटू एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। ये मैंने आपको पूरी तरह से हेल्प कर दिया है। ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। रिटर्न में अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं रिटर्न में दूंगी। लेकिन अब आप क्योंकि चैप्टर 5 तक आप कर चुके हैं तो बहुत सारे एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो अगर मैं ओरल एक्सप्लेन करूं तब भी आप कर सकते हैं। रिटर्न में मैं दूंगी इसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।